Very good morning, students. Today we will do DG class for your geography book chapter 2 inside our earth. ठीक है, हमने पढ़ा था ना अर्थ की अलग अलग क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं. तो आप यहाँ पे वीडियो के थ्रू बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन कौन सी हमारी डिफरेंट अर्थ की लेयर्स हैं. ठीक है, तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 ज्योग्राफी इनसाइड आवर अर्थ की डीजी क्लास. When it comes to our planet, the Earth, we often learn about the surface where we live. But have you ever wondered what lies inside the Earth? What is the Earth made up of? If you slice the Earth open along its radius, which is 6,371 kilometers, you'll see different concentric layers, much like the layers of an onion. Let's look at each layer as well as its depth and what it's made up of. Starting with the surface, which we are most familiar with. The outermost layer of the Earth is called the crust. The crust is also referred to as the lithosphere, and its thickness varies on the surface of the Earth. A closer look will show you that the crust is about 35 kilometers thick on land or on continents. On land, the crust is composed of silica and alumina and called Cl. On the ocean bed, the crust is only about 5 kilometers thick. The oceanic crust is composed of silica and magnesium, Sima. The layer below the Earth's crust is called the mantle. The mantle extends to a depth of 2,900 kilometers. It is believed to be composed of solid rock. However, towards the top of the layer, there is an area of hot, thick molten rock. The innermost layer of the Earth is called the core. It is composed of the inner core and the outer core. The outer core has a radius of about 3,500 kilometers and it is a molten layer. The outer core is mainly made up of nickel and iron and is called knife. The inner core is believed to have very high pressure and a temperature of about 2,760 degrees Celsius. Which layer takes up the most volume of the Earth? Is it the core? It is interesting to note that the core makes up 15% of the Earth's volume. The mantle makes up 84% of the Earth, and the crust only forms 0.5% of the volume of the Earth. सो क्लास, यहाँ आपने देखा कि हमारी अर्थ की डिफरेंट लेयर्स कौन कौन सी होती हैं. ठीक है, सबसे ऊपर होती है जो कि सबसे पतली लेयर है
आपकी, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर कौन सी लेयर होती है आपकी? सेकेंड लेयर होती है आपकी मेंटल। ठीक है, और थर्ड लेयर होती है आपकी कोर। ठीक है, 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर के 2 पार्ट्स होते हैं आपका। एक होता है आपका इनर कोर, जो सबसे अंदर वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं इनर कोर, और उसके बाहर वाले पोर्शन को बोलते हैं हम आउटर कोर। ये क्या होता है? सबसे ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है, ये लेयर जो है सबसे ज़्यादा हॉट होती है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ आपने देखा कि कौन कौन सी डिफरेंट लेयर्स हैं हमारे अर्थ की। क्लियर? अब हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स होती हैं। ठीक है, और उनकी फॉर्मेशन क्या होती है। हमने पढ़ा था बुक में अलग अलग रॉक्स के बारे में और उनकी फॉर्मेशन के बारे में। Hello, everybody. I am hard and heavy, and I make up the Earth's crust. Wait a minute. Even I am called a rock, but I am very soft. Hello. Even I am a rock, but I am so light that I can float on water. You just met the 3 different types of rocks. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि क्या है, ये 3 तरह की रॉक्स हैं। पहली रॉक वो है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा सॉलिड है, लेकिन जो दूसरी तरह की रॉक है वो क्या है? वो बहुत ही सॉफ्ट है। और तीसरी कहती है लेयर कि मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ? लाइट, यानी कि बहुत हल्की हूँ, और इतनी हल्की है ये लेयर कि ये वाटर पे फ्लोट कर सकती है। क्लियर? यानी कि पानी पे भी बह सकती है। ठीक है, तो ये क्या है? अलग अलग रॉक्स हैं। इन सबको हम बोलते तो रॉक्स ही हैं, लेकिन इनके क्या है? फीचर्स सबके अलग अलग होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा सॉलिड होती है, हार्ड होती है, कोई बहुत सॉफ्ट होती है, वहीं कोई बहुत ज़्यादा लाइट होती है। क्लियर? Let's learn more about these rocks. Rocks have different colors, textures, and weights. They are also made up of different materials. Based on the way rocks are formed, they are classified into igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. Igneous rocks are further classified into extrusive igneous rocks and intrusive igneous rocks. Let's take a look at how each of these rocks is formed. Look at this molten material, which is called magma. It is from this material that igneous rocks are formed. The magma flows from the mantle towards the Earth's crust. When the magma slowly solidifies inside the Earth's crust, it forms large-grained rocks. These rocks are called intrusive igneous rocks. When the molten magma reaches the Earth's surface, it erupts through a hole or a vent. And then, on the Earth's surface, the molten magma rapidly solidifies to form fine-grained rocks. These rocks are called extrusive igneous rocks.
Due to natural तो स्टूडेंट्स यहाँ आपने देखा इग्नियस रॉक कैसे बनती हैं जब जो है अर्थ के अंदर क्या होता है, जो मोल्टन मैग्मा होता है, यानी कि पिघला हुआ मैग्मा होता है, जब वो बह के बाहर आ जाता है तो क्या होता है, अगर वो अंदर ही जो है सॉलिडिफाई हो जाता है अर्थ के, तो वो क्या होती है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं। लेकिन अगर वो मोल्टन मैग्मा अर्थ के सरफेस पे यानी कि वेंट के थ्रू, एक होल के थ्रू निकल के जब वो बाहर सरफेस पे आ जाता है, सरफेस पे आने के बाद वो क्या होता है, टाइम के साथ धीरे धीरे जो है कूल डाउन होता है, ठंडा होता है, ठंडा होके क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है और उसका स्ट्रक्चर थोड़ा हार्ड हो जाता है। उस तरीके से जो रॉक्स बनती हैं उन रॉक्स को हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है। forces such as wind, water, and weather, the extrusive igneous rocks then break into smaller pieces. And with the passage of time, these pieces are transformed into tiny particles which are called sediments. Forces such as the wind and water carry these sediments and deposit them at random places. These sediments then get compressed and hardened to form layers of sedimentary rocks. ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या देखा, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं, जब जो सेडिमेंट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे रॉक्स के, वो क्या होते हैं, वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जो है क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है। तो उनके इकट्ठे होने से जब वो वाटर या विंड के थ्रू एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उस तरीके से क्या बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स आपकी फॉर्म होती है। क्लियर। अब हम देखेंगे कि मेटामॉर्फिक रॉक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। Due to extreme heat and pressure, the structure of sedimentary rocks changes and these rocks are transformed into new hard rocks. These hard rocks are the metamorphic rocks. When metamorphic rocks are exposed to great amounts of heat and pressure, they melt to form molten magma, which in turn becomes igneous rock. You would have already observed that the entire process is actually a cycle. The process that you just saw is the rock cycle. However, there could be variations in this cycle. Take a look at the same rock cycle. What are the variations that you observe? Click Continue to proceed. यहाँ हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, कि कैसे जो है ये रॉक साइकिल क्या है कि कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, एक रॉक की फॉर्म से दूसरी रॉक की फॉर्म जो है कैसे कॉन्टिन्यूसली बिल्डअप होती रहती है। ठीक है। अगर सेडिमेंट्री रॉक्स को हीट और जो है प्रेशर से गुजारा जाता है तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं आपकी। ठीक है। और जैसे इरोजन होता है, ये डिपोजिशन होता है, उसकी मदद से भी अलग अलग जो है रॉक्स बनती रहती है और ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। Rocks are exposed to great heat and pressure, they directly become metamorphic rocks. Also, metamorphic rocks or sedimentary rocks on the surface of the earth can break down
and form sediments. In addition, when igneous rocks or sedimentary rocks are exposed to great amounts of heat and pressure, they may directly melt to form magma. While there could be several variations in the rock cycle, what you need to remember is that rocks are forever changing. You have learned about the formation of rocks. However, are rocks useful to us? If yes, can you think of any uses of rocks? Click Continue to proceed. Hard rocks are used to make roads and buildings. Rocks also have minerals, which we extensively use in our daily lives in various forms. Identify the missing elements in the cyclic process and click Show Answer to view the complete rock cycle. यस क्लास, यहाँ पे क्या है, आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको जो मिसिंग नेम्स है वो आपको बताने हैं कि क्या मेल्ट होता है तो कौन सी रॉक बनती है, सॉलिडिफाई यानी कि वो सॉलिड हो जाती है तो क्या बनता है, और जब वो रॉक टूटती है उसके टूटने से कौन सी बनती है रॉक्स, और जो तब रॉक्स बनती हैं उनको अगर हम एक्सपोज करते हैं हीट से और प्रेशर से तो कौन सी रॉक्स बनती हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपकी तीनों तरीके की जो है रॉक्स आपको समझ में आएंगी कैसे कैसे बनती हैं। क्या मेल्ट होता है आप सबको पता है, अभी तक हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये जस्ट आपकी रिवीजन हो रही है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्या मेल्ट होके जो है कौन सी रॉक बनती है, वो सॉलिड होती हैं, तो फिर कौन सी रॉक बनती है, अगर वो रॉक टूट जाती है तो कौन सी रॉक्स बनती है जब वो हम उनको जो है विंड या वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती है, यानी कि उनका जो है इरोजन या डिपोजिशन होता है तो कौन सी रॉक्स बनती हैं, और उन रॉक्स के बनने के बाद अगर हम उनको हीट और प्रेशर से एक्सपोज करते हैं तो कौन सी रॉक्स बनती हैं। आप सब इसको अपनी अपनी कॉपी में करेंगे, कॉपी में इनके आंसर लिखिए, फिर हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में इनका जो है राइट आंसर क्या है। तो आंसर देखते हैं। यस, यहाँ देखेंगे हम क्या आंसर है। देखो, जब मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है मेल्ट होती हैं तो आपका क्या बन रहा था। अब यहाँ देख लेते हैं रॉक्स क्या है, टाइप्स ऑफ रॉक, रॉक साइकिल, यूजेस ऑफ रॉक्स, ये सब आपने पढ़ लिया है। ठीक है, कौन कौन सी रॉक्स होती हैं, रॉक का क्या साइकिल है और किन किन चीज़ों में रॉक्स यूज होती है। क्लियर है। तो आपने जो है क्या देखा, हमारी अर्थ की जो है डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स कौन कौन सी होती हैं हमने वो देखा। ठीक है, कौन कौन सी लेयर्स का क्या क्या कंपोजिशन है हमने वो देखा। कौन सी लेयर जो है अर्थ की सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है, कौन सी आउटर मोस्ट लेयर है। उसके बाद हमने देखा कि रॉक्स क्या होती हैं और रॉक्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, रॉक का साइकिल कैसे चलता है कॉन्टिन्यूसली, कैसे रॉक्स की जो है फॉर्म्स जो है चेंज होती रहती हैं और एक रॉक से दूसरी रॉक का फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूसली होता रहता है। ठीक है, कैसे जो है
सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, और ये सारी जो है एक दूसरे में ही कन्वर्ट होती जाती हैं टाइम के साथ साथ, है ना। ये सब हम देख चुके हैं। अलग अलग टाइप्स की जो है रॉक्स हमने पढ़ ली है, रॉक साइकिल हमने पढ़ लिया है। यूजेस ऑफ रॉक्स में भी हमने देखा है कि कौन कौन सी चीज़ों में जो है रॉक्स का हम अपनी डे टू डे लाइफ में क्या है यूज़ करते हैं। रोड्स बनाने के, डैम्स बनाने के, इवन टूथपेस्ट में आपका मिनरल्स होते हैं, क्योंकि इन रॉक्स में मिनरल्स भी तो होते हैं ना, तो वो मिनरल्स भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारी डे टू डे लाइफ में रॉक्स का हम जो है रॉक्स या उनसे मिलने वाले मिनरल्स को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो आपको समझ में आया इनसाइड आवर अर्थ का चैप्टर? क्लियर कि हमारी अर्थ के अंदर कौन कौन सी लेयर हैं और जो अलग अलग जो ये रॉक्स हैं आपकी, ये कैसे बनती हैं, इनके नाम क्या होते हैं और इनके यूजेस क्या क्या होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? यहाँ आपका चैप्टर 2 का जो है डिजी क्लास कंप्लीट होता है।